Okay, so in this session, we will be doing the sessions of parliament. Okay, parliament जो है, it works on session basis. So it is structured around sessions which are convened by the President of India, and these sessions are crucial for the legislative process, allowing both houses of parliament, that is the Lok Sabha and Rajya Sabha, to discuss, debate, and pass legislation. Okay. सो सबसे पहले समन किया जाता है पार्लियामेंट को. देयर इज समनिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट समन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट to meet at such times and place as deemed fit. So this question, or this rather this fact, they had asked in the 2020 prelims. Okay. And the constitution mandates that there cannot be a gap of more than 6 months between two sessions. That means Parliament has to meet at least twice a year. So this is also a PYQ. देखिए, जब साल में कितने महीने होते हैं? साल में 12 months होते हैं, and there cannot be a gap of more than 6 months between two sessions. So it ensures that the parliament has to meet at least twice a year. So there is nothing written how many times the parliament can meet. What is the minimum number and maximum number? Nowhere it is written. What is written? That there cannot be a gap of more than 6 months. And to fulfill this technicality, you have to meet at least twice a year. Okay. So what is annual session? So annual session जो है उसमें generally what we have is budget session. So it typically runs from February to May, during which the annual budget is presented and passed. Then you have the monsoon session. It coincides with the monsoon season in India, that is from July to September, named for the season during which it occurs. And then you have the winter session. It takes place from November to December, focusing on concluding the legislative agenda for the year. Okay, so start up budget session से करते हैं, then in the middle you have the monsoon session, and finally you have the winter session. Okay, which basically concludes the legislative agenda in the parliament for that particular year. Definition of a session. So what is the definition? So a session, it spans from the first sitting of a house to its prorogation, or in case of Lok Sabha, potentially its dissolution. मतलब आइदर जब नॉर्मल सेशन है तो आपका प्रोरोगेशन हो रहा है, प्रोरोग हो रहे हैं आप, जब लोकसभा का समय खत्म होने वाला है, मतलब 5 साल कंप्लीट होने वाला है, तो लोकसभा डिसॉल्व भी हो सकता है इन वन सर्कमस्टांस. इन द नॉर्मल सर्कमस्टांस जो है आप प्रोरोग करेंगे, और इन द फाइनल सर्कमस्टांस जब 5 साल कंप्लीट हो गए तब आप क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे. अभी रिसेंटली डिसोल्यूशन कब हुआ था? 2024, लास्ट ईयर तो हुआ था. लास्ट ईयर इलेक्शंस हुए थे ना. जिस साल इलेक्शन होता है उसी साल तो डिसॉल्व करते हैं. क्या राज्यसभा डिसॉल्व कब होता है? 6 साल में या 5 साल में? राज्यसभा कब डिसॉल्व होगा? 5 साल में, 6 साल, कहीं भी नहीं होता है. राज्यसभा इज ए कंटिन्यूअस हाउस. याद आया? एवरी 2 year 1/3 मेंबर रिजाइंस. सो नॉट रिजाइंस, रिटायर्स. हाउ डू यू डिसाइड दैट? इनिशियली कैसे डिसाइड किया गया था कौन रिटायर होगा? ये तो एक सिचुएशन बन गया ना, लॉटरी सिस्टम से. सो लॉटरी सिस्टम से जो है महानुभाव, जो who were unlucky, they had to you know they had to retire early. एंड उसके बाद एक तरीके से आप कह सकते हो लूप बन गया. ओके, उससे उसके हिसाब से एक लूप बन गया. यस. So session spans from first sitting of a house to its prorogation,
or its dissolution in case of Lok Sabha. During a session, the House meets daily, except on holidays, to transact its business, and it is divided into morning and post lunch sitting. तो एक मॉर्निंग सेशन, मॉर्निंग सिटिंग होता है. सेशंस जो है, सेशंस ऑर्गेनाइज कैसे होता है? सिटिंग्स में. हमने क्या बात की थी कि पार्लियामेंट जो है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन सेशंस, एंड द सेशंस इटसेल्फ इज ऑर्गेनाइज्ड इन सिटिंग्स. तो आप जो है सिटिंग्स देखते हैं कि सिटिंग्स हो रही है, तो उस समय जो है आइदर यू मीट इन द मॉर्निंग और यू मीट पोस्ट लंच. And the period between the prorogation of a house and its reassembly in a new session is referred to as recess. तो recess हमें कहाँ मिलता था? स्कूल में जनरली 8 पीरियड्स जो होते थे, उसमें से 4 पीरियड जो है, उसके बाद रिसेस होता था 1 घंटे का या आधे घंटे का, वेर यू यूज टू गो टू द ग्राउंड एंड ईट योर लंच. है कि नहीं? सो चार चार पीरियड और 4 पीरियड के बीच में एक रिसेस मिलता था. उसी तरीके से इन द वेरी वेरी सिमिलर मैनर यहां पर भी जो है, जब हाउस का प्रोरोगेशन हो जाता है, ओके ओके, प्रोरोगेशन हो जाता है, तब उसके बीच में हम क्या कहते हैं कि रिसेस होता है. ओके. एडजर्नमेंट क्या होता है? एक सेशन में बहुत सारी मीटिंग्स होती है. हमने बताया ना, पार्लियामेंट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड सेशंस, एंड सेशन इटसेल्फ इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड मीटिंग्स. ओके. और मीटिंग्स जो है, यू हैव मल्टीपल मीटिंग्स इन अ डे. और यहां पर क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि मान लिया कि समय हो रहा है, जैसे खाने का समय हो गया, लंच का समय हो गया, तब आप क्या कर सकते हो? उस पर्टिकुलर मीटिंग को आप जो है, या उस पर्टिकुलर सिटिंग को आप एडजर्न कर सकते हो. या अगर मार पिटाई होनी स्टार्ट हो गई है, बहुत हल्ला हो रहा है, एंड यू कैन नॉट कंटिन्यू, you cannot continue this thing, if the leader of the house, he decides that okay, it is too much noise, or it is too much indiscipline, or it is time for lunch, something like this. जो भी reason है, any reason can be there. So adjournment करके you can temporarily suspend the work of a sitting for a specified time. तो वहां पर जो है बोला जाता है by the leader of the house, he says that okay, till 1 p.m., till 3 p.m., the adjournment is there, something like this. And this could range from hours to week. या तो कुछ घंटों के लिए हो सकता है, या पूरे पूरे हफ्तों के लिए हो सकता है. And then you have adjournment sine die. What does this mean? It means it marks the end of a session without specifying a date for next meeting. And then you have prorogation. And what is prorogation? It is the formal concluding of a session, after which the House cannot conduct business until it is summoned again by the President. And then एक और प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर 5 साल कंप्लीट होने को आए हैं, जैसे लास्ट ईयर हुआ था 2024 में, यू कैन ऑल्सो डिसॉल्व. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज is to understand the difference between adjournment sine die and prorogation. So adjournment sine die जो है, बेसिकली यहां पर क्या होता है कि टर्मिनेट हो गया है सेशन विदाउट स्पेसिफाइंग ए डेट फॉर इट्स नेक्स्ट मीटिंग. यहां पर जो है एक तरीके का इंडेफिनिट ब्रेक है. बट टेल मी वन थिंग फ्रॉम योर नॉलेज, when adjournment sine die is announced for a session, can the parliament or can the members meet again in the same session? The answer is yes. The answer is yes, they can. Adjournment sine die is unspecified. ये कहा जाता है कि अब जो है आपकी छुट्टी है, लेकिन ऑफिशियली नहीं हुआ है. द सेशन इज स्टिल गोइंग ऑन. द सेशन गेट्स ओवर व्हेन, ऑफिशियली कंक्लूड नहीं करता है. It is basically a break on the session, but it is not absolute. Officially क्या करता है?
ऑफिशियली प्रोरोगेशन से होता है। आप ऐसे समझिए कि आप गए हैं कॉलेज और वहां पर लास्ट डे है, तो आपके प्रोफेसर साहब ने कह दिया कि कल से छुट्टी है। ओके, तो आप बोले अरे प्रोफेसर साहब ने बोल दिया कल से छुट्टी है, मस्त। तो क्या कल से छुट्टी है अनटिल एंड अनलेस रजिस्ट्रार या वाइस चांसलर का नोटिस नहीं आता है कि कल से छुट्टी है? नहीं है। तो जो प्रोफेसर साहब ने बोला कि कल से मुझे पता है, मैं बहुत क्लोज हूं, छुट्टी है, अर्जनमेंट सिने डी हो गया, तो आप सब खुश है कि हाँ यार अर्जनमेंट सिने डी मतलब प्रोरोगेशन इज कमिंग। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Adjournment sine die generally means that the prorogation will happen soon. But adjournment sine die हो चुका है और कुछ इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैटर आ गया on which the legislator has to work, देन आपको बुलाया जा सकता है। अब यहां पर ये समझिए, आप गए कॉलेज, प्रोफेसर ने बोला कल से छुट्टी है, मुझे पता है, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट क्लास हो गई या कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी करानी है, तो फिर क्या बोला गया कि नहीं नहीं, प्रोफेसर साहब ने बोला कि मैंने कल आपको बोला था ना कि अब छुट्टी है, नहीं, अभी वीसी साहब ने बोला है, रजिस्ट्रार साहब ने बोला है कि कल आना है आपको एक स्पेशल क्लास के लिए। तो adjournment sine die when it is announced, it is just like adjournment, बट adjournment sine die में क्या होता है आपको ये नहीं बताया जाता है कब नेक्स्ट मिलेंगे। आप ऐसे समझिए कि adjournment has happened, तो when normal adjournment happen तब आपको बताया जाता है, you are told that tomorrow we will meet at 3 p.m., we will meet day after tomorrow at 5 p.m. ओके, ऐसे करते 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 आपको बता दिया जाता है। सो इन adjournment यू नो व्हेन यू विल मीट, एंड देन adjournment sine die में adjournment हो जाता है विदाउट इंटीमेशन of when you are going to meet. It does not conclude a session. It is adjournment without telling you when is the next meeting. And this is generally the precursor for official conclusion, that is prorogation. Now, did you understand? अब क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। एनी डाउट दैट यू गाइज हैव? किसी को इसमें डाउट है? ओके। So, presiding officer of the house, he holds the power to adjourn session sine die, and the presiding officer also has the discretion to call a meeting, okay, any time after adjournment sine die. All right. Adjournment sine die का मतलब ये है कि adjournment has happened without telling you when will be the next meeting. In the normal adjournment, they basically tell you when is the next meeting, कल है, परसों है, आज ही है, शाम को, something like this. But adjournment sine die में क्या होता है, they basically tell you कि अब adjournment हो गया है, but there is no intimation or there is no information on the date and time of the next meeting. And adjournment sine die is a precursor for prorogation. Prorogation generally follows adjournment sine die. Now is it clear? So who announces adjournment sine die? It is the presiding officer of the house. Whereas prorogation जो है, it is declared by the president. अब समझ में आया why we say president is an integral part of the parliament. The parliament consists of two houses and the president. यहां पर president का काम आ जाता है. So prorogation formally ends the session through, okay. और अब जब आपको मीटिंग करनी है तो कैसे करेंगे आप? adjournment sine die के बाद अगर मीटिंग की जरूरत पड़ी, so you can resume it without any problem. बट अगर प्रोरोग हो चुका है देन यू हैव टू समन अगेन, फिर से जो है। प्रोरोगेशन इफेक्टिवली सीजेस ऑल बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस, ओके, अनलाइक adjournment sine die which is a temporary suspension. Adjournment sine die क्या है? It is a temporary suspension without telling you the date and time of next meeting, but by convention or by rule, it is basically प्रीकर्सर ऑफ प्रोरोगेशन। प्रोरोग होने से
पहले जो है adjournment sine die का यूज आता है. Is it clear now? Okay, so prorogation concludes the session entirely until the house is summoned again. Okay. The president has the power to prorogue the house at any time, even while it is in session. So this is a convention for the smooth functioning of house that prorogation will follow adjournment sine die. But is it a fixed rule or is it a obligation? So the answer is no. चलती सेशन को भी प्रोरोग किया जा सकता है. बट इज दिस अ राइट वे टू डू थिंग्स अनऑफिशियली भी? क्या मान लो चल रहा है सेशन, आप सोच रहे हैं कि कल मैं ये बात करूंगा, कल ये डिबेट होगी, और पता चला प्रोरोगेशन हो गया. सो वुड वी बी अ सीरियस कंट्री देन? तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि प्रोरोगेशन हैज टू फॉलो एडजर्नमेंट सिने डी, बट दिस इज हाउ सीरियस बिजनेस इज कंडक्टेड अनऑफिशियली. दैट एडजर्नमेंट सिने डी जो है वो एक तरीके से फुल स्टॉप लगाता है बिफोर ऑफिशियल क्लोजिंग कैन हैपन, एंड दिस इंश्योर्स दैट द लेजिस्लेटिव मैटर्स इज कंडक्टेड स्मूथली. चलते हुए सेशन में आप प्रोरोग कर सकते हैं, चलते हुए सेशन को आप प्रोरोग कर सकते हैं. सो नोटिस नहीं मिलता है. प्रोरोगेशन मतलब नोटिस मिलता है उसमें कि आप खत्म. ये नहीं मिलता है कि मैं 4 दिन बाद प्रोरोगेशन लगाने वाला. लेकिन एडजर्नमेंट सिने डी जब हो जाता है, व्हेन इट इज अनाउंस्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर दैट एडजर्नमेंट सिने डी हैज हैपेंड, देन व्हाट, उससे क्या होता है, मेंबर्स आर आल्सो माइंड से फ्री हो जाते. मेंबर्स आल्सो नो दैट okay, I don't have to go, I can now go back to my constituency because adjournment sine die has happened, and this will be followed by prorogation. And I know that prorogation, when it will happen, it will cease the business of this session, and then we will be summoned again in short time. Okay, now is it clear? adjournment sine die और prorogation के बीच का डिफरेंस पता चला? yes. डिसोल्यूशन कब होता है? सो डिसोल्यूशन राज्यसभा का हो नहीं सकता. यू कैन नॉट डू द डिसोल्यूशन ऑफ राज्यसभा, यू कैन ओनली डू द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा. सो ओनली द लोकसभा बीइंग ए टेम्पररी हाउस इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, and the Rajya Sabha as a permanent body does not dissolve. So what are the methods of dissolution? One is automatic. So once your term expires, जब 5 साल complete हो जाते हैं, so then you are automatically dissolved unless your term has been extended due to national emergency. If it is not extended due to national emergency, आप जो है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाए. दूसरा है प्रेसिडेंशियल डिस्क्रेशन इज देयर. सो प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा एट एनी टाइम बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म. ओके, सो दिस इज ऑल्सो देयर. एंड डिसोल्यूशन क्या करता है? इट एंड्स द लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा एंड इट नेसेसिटेट्स जनरल इलेक्शन. सो प्रोरोगेशन के बाद इलेक्शन की जरूरत पड़ती है? प्रोरोगेशन के बाद इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. देयर इज नो नीड. व्हाई? बिकॉज प्रोरोगेशन इज टर्मिनेशन ऑफ ए सेशन. देयर आर मल्टीपल सेशन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए लोकसभा और ए पार्लियामेंट और द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. बट when it comes to Lok Sabha, when dissolution happens, it ends the life of the Lok Sabha, and then new elections has to be there. All pending businesses, including bills and motion, lapses and must be reintroduced in the newly constituted Lok Sabha. Prorogation पे कोई अगर बिल रह जाता है, सपोज इन अ सेशन अ बिल कुड नॉट बी पास्ड, सो क्या वो बिल लैप्स कर जाएगा? नेक्स्ट सेशन में नहीं करेगा. आप जो है नेक्स्ट सेशन में उसको पास करा सकते हैं. बट अगर जब डिसोल्यूशन हो जाता है, सो एनी बिल विच इज पेंडिंग, ओके, तो उसका जो स्टेटस है वो क्या होता है? वो खत्म हो जाता है. लेकिन अब यहां देखिए, प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. जब डिसोल्यूशन होता है लोकसभा का, तब क्या होता है? सो देर आर डिफरेंट स्टेटस. देर आर व्हाट? देर आर डिफरेंट स्टेटस ऑफ द बिल. अगर कोई बिल पेंडिंग है लोकसभा में और इट इज पास्ड बाय द लोकसभा,
but pending in the Rajya Sabha, it lapses. Okay. Bills pending in the Rajya Sabha but not passed by the Lok Sabha does not lapse. Why? Because Rajya Sabha is a permanent body. So Rajya Sabha में अगर कोई परमानेंट कोई बिल पेंडिंग है तब उसको पास करा दिया जा सकता है, ठीक है। उसको जो है वो लैप्स नहीं करेगा लोकसभा के डिसोल्यूशन से। एंड बिल्स पास्ड बाय बोथ हाउसेस बट अवेटिंग द प्रेसिडेंट्स असेंट और रिटर्न्ड फॉर रिकंसिडरेशन डू नॉट लैप्स। ओके। सो इस चीज जो है आपको समझना होगा। 2024 में दे हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन। In 2024 they had asked this question. All right, so bills pending in the Lok Sabha or passed by the Lok Sabha but pending in Rajya Sabha lapses. So can I say that Rajya Sabha has some power here, that it can keep a bill, it can keep a bill and लोक सभा को फ्रस्ट्रेट कर सकता है, एंड देन व्हेन लोक सभा डिसॉल्व्स तो वो बिल भी लैप्स कर जाता है। ओके। ओके। ऑर्डिनरी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन राज्यसभा, मनी बिल कैन ओनली बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा। ऑर्डिनरी बिल्स आप राज्यसभा में ला सकते हैं। इवन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन द राज्यसभा। ओके। मनी बिल में टाइम लिमिट होती है 14 दिन की। मनी बिल में टाइम लिमिट होती है 14 दिन की, बिकॉज राज्यसभा हैज नो पावर। राज्यसभा हैज टू गिव इट्स रिकमेंडेशन विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। ओके। अगर बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है देन, अगर नॉर्मल बिल में बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है देन क्या होता है, आर्टिकल 108 किक्स इन और फिर आपका क्या होता है। यस। ओके। ओके, आई विल गिव यू अ लिस्ट। आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ द बिल्स विच आर प्रेजेंटेड इन राज्यसभा, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग होती है, यस यू आर करेक्ट। आर्टिकल 108, जब बिल्स जो है स्टक हो जाते हैं आइदर हाउस में, इफ आइदर हाउस कैन नॉट अग्री फॉर दैट, तब जो है ज्वाइंट सिटिंग होता है। Okay, so bills pending in the Rajya Sabha but not passed by the Lok Sabha, it does not lapse. And bills passed by both houses but awaiting the president's assent or return for reconsideration does not lapse. Okay, so ये case जो है, this one, the last one, it was there in your 2024 prelims. Okay, it was there in 2024 prelims. Any question? नहीं, राज्यसभा में आते रहता है। ओके। राज्यसभा जो है उसमें आते रहता है, मनी बिल को छोड़ के। मनी बिल को छोड़ के आप जो है नॉर्मल बिल्स, इवन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है आप कर सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर? यस। अब हम बात करते हैं कोरम के बारे में। कोरम के बारे में, सो कोरम is the minimum number of members required for the house to conduct its business. We have talked about this, and this is 1/10, and this is equal to what? Quorum is also equal to what? If you remember rule 389, we have studied rule 389, LOP recognition. Yes. So for the Lok Sabha, at least 55 members must be present, and for the Raj Sabha, at least 25 members. Okay. All right. So it is the presiding officer's duty. If the quorum is not met, the presiding officer may adjourn the house और सस्पेंड द मीटिंग अंटिल द कोरम इज अचीव। देखिए, अच्छा नहीं लगता है अगर आप राज्यसभा में हैं और 5 मेंबर 6 मेंबर हैं, तो अच्छा लगेगा कि सेशन हो रहा है। आप देखिए नॉर्मल डेज में, जैसे आज खोल के देख लीजिए आप टीवी। आज तो नहीं, चलिए अब तो थोड़ा सा माहौल गर्म है, लेकिन नॉर्मल डेज में अगर आप देखते हैं वीक डेज में इस समय 10-12 बजे, तो आपको दिखता है कि खाली रहता है, बहुत कम लोग रहते हैं। कोई उधर कोने में बैठा हुआ है, कोई इधर कोने में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी 25 मेंबर्स की आवश्यकता है राज्यसभा में और 55 मेंबर्स की आवश्यकता है लोकसभा में, सो दैट ओके देन ओनली द प्रोसीडिंग्स कैन गो। सो दिस इज रिलेटेड टू द डिग्निटी ऑफ द हाउस। अच्छा नहीं लगेगा 4-5 मेंबर रहेंगे इतने बड़े पार्लियामेंट में, एंड उसके बाद जो है आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके बाद माहौल भी बिगड़ जाएगा ना। प्रेजेंट एंड वोटिंग, मान लिया वोटिंग है, 10 मेंबर आए, तो उसमें 6 मेंबर वोट कर रहे हैं, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन?
आपका बिल पास हो रहा है क्या, दिस इज लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर जो है, इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द लेजिस्लेचर। ओके।